சுவாதி வரல. என்ன தண்ணி 6 participants இருக்காளே. அன்னபூர்ணி, தனகிரே, நளினி, சுஜாதா கே. யாரு சுஜாதா கே? தெரியலையே. சரி, யாரு சுஜாதா கே? சரி வா கிளம்பு, ஆரம்பி. Sujata is from Bangalore. Sujata is from Bangalore. Oh, I am a cousin of Hemalata Shivakumar. அச்சா அச்சா. ஓகே. கோபால் இன்னைக்கு ஒன் டே டெய்லி வேலை வந்திருக்கான்னு நினைக்கிறேன். இல்ல டெய்லி கீதை. ஆமா 7 மணி ஆமா, அவர் எனக்கு ஹேமு தான் எனக்கு கொடுத்தா. So almost daily I join. சரி, இது அர்த்தம் சொல்ற ஒரு குரூப், சின்ன குரூப் அது. நீங்க இருங்க. ஓகே ஓகே. நான் லாஸ்ட் வீக் 2 days வர முடியல. டைமிங்ஸ் ஏதாவது சேஞ்ச் ஆயிருக்கா? இல்ல டெய்லி 7 மணி அது உண்டு. ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் கிடையாது. அன்னைக்கு வந்து இது வேற ஒரு சின்ன. ஓகே சாரி, நான் எப்போதும் வர மாதிரி வந்துட்டேன். இல்ல நீங்க கண்டினியூ பண்ணலாம். வெறும் 12th சாப்டரோட மீனிங் தான் சொல்றேன். அதனால கண்டினியூ பண்ணனும்னா பண்ணலாம் நீங்க. நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, थैंक यू. ஆரம்பிங்க. சொல்லு. வசுதேவ சுதம் தேவம் கம்சசானுர்யமர்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும். கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும். கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும். अच्छा चलो. अन्य ஒரே ஒரு தப்பு உமா. வசுதேவ சுதன் தேவம் கம்சசானுர்ய அப்படின்னு சொல்றேன். சாணூரிய இல்ல சாணூர மர்தனம். சாணூர. அது எனக்கு இது நான் பார்க்கவே தாத்தா அப்படியே பழக்கமாயிடுச்சு. ஆமாமா கரெக்ட். சாணூர மர்தனம். சாணூர கம்சன் சாணூரன் அது 2 மல்யுத்த வீரர்கள். அவர்கள் 2 பேரையும் கொல்லலாம். அதனால கம்ச சாணூர மர்தனம் செய்தவனை அப்படின்னு நான் போன தடவை சொல்லணும்னு நினைச்சேன். அது அப்புறம் பேச்சுல மறந்து போச்சு. சரி, எனக்கு பெரம்பூர் தடவை சொல்லி கொடுத்தா கிருஷ்ணாஷ்டகம். அது நான் அப்படியே. அச்சா, ஓஹோ சரி. சோ எனக்கு பிரியமான பக்தன் யார் அப்படின்னு விவரிக்கிறான். அது 12வது அத்தியாயம் 13வது 14வது ஸ்லோகம். நேற்று போன தடவை பார்த்தோம். அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ரः கருண ஏவ ச நிர்மமோ நிரஹங்கார சமதுக்க சுகக்ஷமீ. அத்வேஷ்டா வெறுப்பில்லாதவன், சர்வபூதானாம் மைத்ர எல்லா உயிர்கள் மீதும் நட்பு வைத்திருப்பவன், சர்வபூதானாம் மைத்ர கருண ஏவச்ச கருணை கொண்டவன், ஈர உள்ளம் கொண்டவன், நிர்மமோ நிரஹங்கார என்னுடையது நான் என்ற பாவனை உணர்வு இல்லாதவன், நான் என்னுடையது. समदुख सुख सुखத்திலும் अरे मराठी में हिंदी में बोलूं क्या आप हैं? நானே ஹாஸ்டல்ல வாட்டி கேட்டுருக்கோம். स्वाति சிரிச்சோதே எனக்கு தோணிது. ஐயோ ओके ओके. तो हम पिछले सप्ताह में 12वां अध्याय उसके 13वें और 14वें श्लोक मेरे प्रिय भक्त यह विषय हमने चर्चा किया था. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणे एव च, जिसके मन में द्वेष नहीं, जो सभी जीवों के मित्रता मैत्री जिसके मन में है, जिसके मन में दया भाव है, करुणा भाव है, गीला मन है, जो रोता है अन्यों के कष्ट को देखकर, निर्मम निरहंकार जिसके अंदर
मैं और मेरा यह भावना है नहीं। मैं और मेरा, निर्ममो निरहंकार, सम दुख सुख, सुख और दुख में जो सम है, सम दुख सुख, क्षमी, जो क्षमा करता है, क्षमा करता है। तो ऐसे हमने गुणों को देखा। सम दुख सुख क्षमी, संतुष्ट, जो संतुष्ट है, जो भी अनुभव मिले, जो भी वस्तु मिले, जो भी अवसर मिले, उससे संतुष्ट, उसमें दोष देखना, कमी देखना और हर समय दुखी रहना, ऐसा ना होते हुए जो संतुष्ट है, सभी जो प्राप्त होता है उसे उसी का प्रसाद, ऐसा जो स्वीकार करता है, संतुष्ट। सततम योगी, जो बैलेंस्ड है, जिसका मन बैलेंस्ड है, उत्तेजित होता नहीं। योगी, योगम, जो बैलेंस है। समत्वम योग उच्यते, ऐसा दूसरा अध्याय में कहता है। समत्व, बैलेंस, एक्सट्रीम पैशन, एक्सट्रीम गुस्सा और एक्सट्रीम पश्चाताप, एक्सट्रीम काम और एक्सट्रीम उसके नहीं मिलने से क्रोध, ऐसे बहुत एक्सट्रीम पैशंस ना होते हुए जो बिल्कुल बैलेंस के आसपास जो भटकता है, ठीक है, उसमें भी काम है, बाकी सब है, फिर भी सततम योगी, जो हर समय बैलेंस्ड है। यथात्मा, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पर संयम है जिसके मन में, सेल्फ कंट्रोल। यथात्मा, दृढ़ निश्चय, जो डिसीशन, डिसिसिव, फर्म डिसीशन, फर्म है। इनफर्म, इनफर्मिटी, ढीला ढाला, जो निर्णय ले नहीं सकता, वो भगवान कहते हैं मुझे वह प्रिय है नहीं, मेरे लिए प्रिय है जो निर्णय लेता है, वही मेरे लिए प्रिय है। दृढ़ निश्चय, मय्यर्पित मनोबुद्धि, जिसका मन और बुद्धि मेरे लिए अर्पित है। मैं जो बताऊं, मैं जो दूं, मैं जो सुझाऊं, उसे ही स्वीकार जो करता है, स्वयं की बुद्धि लगाता नहीं, स्वयं की इच्छाएं रखता नहीं, ऐसे जो जिसका मन और बुद्धि मेरे लिए समर्पित है, वही मेरा प्रिय भक्त है। He is my beloved devotee, ऐसा वो कहते हैं। नेक्स्ट 14, 13, 14, 15वां श्लोक। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः। वाह वाह वाह, यहाँ मुक्त दिखाइए। नमस्कार 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 करा आजोबांना, नाही आजोबांना नमस्कार करा. नाव काय तुझा? नाव काय सांग? नीट नीट बोल. जय श्रीराम म्हण. जय श्रीराम। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः। यानी लीडरशिप का एक बहुत अच्छा एक क्वालिफिकेशन बताते हैं। जो यस्मान्नो द्विजते लोको, जो लोगों को उद्वेग नहीं चढ़ाता, one who does not incite, one who does not excite the people, मार डालो, ये जो घोषणा वाले नेता है,
हमारे राजीव गांधी ने बोला था, जब कोई बड़ा वृक्ष मरता है, गिरता है, तो छोटे पौधे हजारों मर जाते हैं। किसके लिए बोला? जब कांग्रेस के गुंडे सिखों को जाकर घर घर में जाकर जलाते थे, मारते थे, उसको खंडन नहीं किया, दैट इज रॉन्ग। ऐसे अपने कार्यकर्ताओं को रोका नहीं, उल्टा उसने कहा मारो ठीक है, कोई बड़ा वृक्ष मर जाता है तो कुछ तो मरते ही है। ही जस्टिफाइड दैट। ये लोगों को उद्विग्न करना, एक्साइट कराना, इंसाइट, उत्तेजित कराना, तूंडी विड़दल तमिल में, ऐसा जो करता नहीं, यस्मान्नो द्विजते लोको, लोकान्नो द्विजते चयः। इसका रिवर्स, जो जनता से उत्तेजित होता नहीं, one who does not get excited by the people, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अरे तुम हमारे नेता हो, चलो आगे जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा भीड़, फुकट का भीड़, कोई काम नहीं, जो थोड़ा सा डरा दिया तो भाग जाएगा, तितर बितर हो जाएगा, ऐसे भीड़ इसको उत्तेजित करा देता है। ऐसा स्वयं भी जो उत्तेजित होता नहीं और दूसरों को भी उत्तेजित कराता नहीं। अब कोई भी विषय समझाना, विषय को समझाना शांत मन से, उसको पढ़ाना, यह बड़ा कठिन है। क्रिश्चियन मिशनरीज कैसे काम करते हैं, कैसे कन्वर्शन के ट्रायल करते हैं, कैसे बच्चों को लटकाते हैं, बड़े घर के बच्चे, कोई बड़ा कोई व्यक्ति है, उसके घर के बच्चे को फंसाने का कैसे प्रयत्न करते हैं, ऐसा शांति से विषय समझाना, लॉजिक के साथ, उदाहरण के साथ, इसको बहुत समय लगता है। मारो काटो, भीड़ को भिड़ा दिया, और देखो तोड़ो, ऐसा भिड़ाना, एक्साइट कराना, यह आसान है और बहुत से नेता यही करते हैं। एमजीआर मर गए थे, उस समय हिंसा हुई। ये अपने यहाँ गांधी मर गए तो महाराष्ट्र में कम से कम 10-12 हजार ब्राह्मणों को ढूंढ ढूंढ के मारा और पूरे घर को जलाया। ये उत्तेजना, वो कौन था, वो यशवंतराव चव्हाण और ये लोगों ने, अच्छा भक्त, माय बिलवेड डिवोटी, जो दूसरों को उत्तेजित कराता नहीं और स्वयं उत्तेजित होता नहीं। शिवाजी के जो थे, एक शिवाजी ने कभी ऐसा अपना गला फाड़ के ऐसा डायलॉग नहीं बोला अपने सेनाधिपतियों से। बाजीराव देशपांडे के पास, बाजी प्रभु के पास ने, उनका नाम क्या, धनगरे, कई थे, अभी झट से मेरे स्मरण में एक याद नहीं आ रहा। तो हजारों में थे वो, जो कोंडाना में ये ले गए थे, उसको पकड़ के उसमें रस्सी बांधकर सब लोग ऊपर चढ़े थे। तानाजी, एक कितने जोरदार व्यक्ति थे। उन्होंने कभी ऐसा अपना फिल्मी हीरो जैसा मैं आ रहा हूँ ऐसा एक्साइट नहीं कराया, आराम से काम किया, शांत चित्त, बैलेंस्ड, ये मेरे लिए प्रिय भक्त है, ऐसे उनका कहना है। यस्मान्नो द्विजते लोको, लोकान्नो द्विजते चयः। हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग। हर्ष, too much excitement, happiness, joy. Amarsh, too much
डिप्रेशन, दुख, भय, टू मच फियर, उद्वेग, एक्साइटमेंट, टू मच। अपने यहाँ क्रिकेट का टीम का उदाहरण हर समय मुझे याद आता है। कोई ऐसा छोटू टीम के साथ जीत के आएंगे, जिम्बाब्वे के साथ, वेस्ट इंडीज के साथ, हाथी पर उनके लिए बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे। बिहार सरकार ने उनको घर दिया, तमिलनाडु सरकार ने 5 लाख दिया, ऐसे घोषणा करेंगे। अरे सामने दुश्मन क्या था, वो टीम कितना पावरफुल था, उसके साथ जीत गए तो क्या हुआ? कौन से अपने शक्ति के कारण जीते कि उनके वीकनेस के कारण जीते? ये कोई होता नहीं। इतना यूफोरिया होता है, जनता भी ऐसे धूम मचाते हैं, तुरंत उनको नाटक टीवी में विज्ञापन के 80 करोड़ के 50 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाते हैं। अपना गावस्कर, तेंदुलकर, ये लोगों ने अपना प्रोफेशन इनकम टैक्स में एक्टर, क्रिकेटियर, प्लेयर, स्पोर्ट्समैन ऐसा नहीं लिखा, एक्टर, क्योंकि उसको तेंदुलकर को विज्ञापन से 300 करोड़ मिलता था, क्रिकेट से तो कुछ 50-100 करोड़ मिलता था। एक्टिंग, क्रिकेट का उपयोग करके अपना विज्ञापन करा के ये खाओ, वो खाओ, ये पियो, ऐसा। एक ही व्यक्ति था, दमदार पुरुष, एक ही था। उसका नाम क्या है? फुलेला, फुलेला, गोपीचंद। गोपीचंद, वेरी गुड, गोपीचंद, करेक्ट, गोपीचंद फुलेला। मैं जब कॉलेज में था उस समय वो बैडमिंटन का वर्ल्ड चैंपियन बना था, यूरोपियन चैंपियन बना था, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लिया था, और वापस आया। पेप्सी कोला ये कंपनी ने उसको ब्लैंक चेक दिया, ब्लैंक चेक, 1 रुपया डालकर, 1 नंबर डालकर, तुम जितना साइफर डालाना है डालो, ऐसा उसको चेक दिया। वो कहा उसने, मैं अपने कोई सक्सेस जो मिला है, मेरा जो मेरी कीर्ति है, मेरा यश है, इसको मैं अपने बच्चों को बिगाड़ने के लिए इसका उपयोग नहीं करूंगा, बच्चों को गलत आदतें देने के लिए इसका उपयोग नहीं करूंगा, ऐसा उस चेक को फाड़ के भेजा था। फुलेला गोपीचंद, छोटा सा एक समाचार हितवाद में आया था उसमें। और हमारा सचिन तेंदुलकर जब वो कहता है कि ये फ्लाईओवर यहाँ आना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को जो गिफ्ट मिले हैं कार, उसके लिए मैंने जो 7-8 मंजिली का बिल्डिंग बनाया, मेरे सब कार का व्यू ये फ्लाईओवर से खत्म हो जाएगा, इसीलिए एक फ्लाईओवर बनना नहीं चाहिए। ऐसे घर घर में जाके उसने साइन कलेक्शन किया। तो ये इसको उसको बड़ा राज्यसभा का एमपी बनाते हैं, बड़े उसको ये मिलता है। वी कैन नॉट टेस्ट एंड रियलाइज द रियल एसेंस ऑफ पर्सनैलिटी। हम लोग बहुत कमजोर हो गए, फेक विषयों पर हम बहक जाते हैं। फेक, जो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऐसे कहावतें तो पढ़ते हैं, बट हमको स्वयं को अपनी बुद्धि है नहीं कि परखना। कोई बड़ा विज्ञापन कराता है, कोई बड़ा फ्लेक्स बैनर लगाता है, कोई धार्मिक व्यक्ति के नाम से आकर ऐसे बड़े बड़े योजना बनाता है, हम ठगे जाते हैं, बने जाते हैं, मूर्ख बनते हैं, और बाद में बोलते हैं कि नहीं गलती हो गई। चिट फंड्स कितने बार बनते हैं हम, क्योंकि वी आर नॉट एबल टू टेस्ट
अपनी वो बुद्धि की क्षमता खत्म हो गई। व्यक्तियों को परखना, संगठनों को परखना, राजनीतिक नेताओं को परखना, पर कम से कम जो चिंतन करने वाले छोटा सा ग्रुप है, एटलीस्ट उनमें तो ये जिंदा होना चाहिए। तो एक्साइटमेंट टू मच। छोटे छोटे बच्चा आता है और एक कप को लेकर आता है, प्लास्टिक कप, और माँ के साथ वो उछल कूद करता है, मैं फर्स्ट, ऐसा फिट्स आए हुए जैसा नाचता है। तो अच्छे माँ क्या करना चाहिए? ठीक है, कौन, कितने लोगों ने भाग लिया कंपटीशन में? 3 लोगों ने। हाँ, 3 लोगों में तुम फर्स्ट आए क्या? अच्छा, ठीक है, रखो, शेल्फ में रखो, चलो आगे का काम देखो। हम भी उसके साथ मिलकर नाचना नहीं चाहिए, उसको बैलेंस सिखाना चाहिए, एक्साइटमेंट। इसीलिए आज बच्चे, मेरा हैप्पी बर्थडे किसी ने विश नहीं किया। हमारी तो एक लड़की नई शादी हुई थी, उसने, उसका पति एक इंडस्ट्री चलाता था, वो लेट आता था, उस दिन भी लेट आया, रात को 12:30 बजे आया, कोई काम था, तो उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। 12 बजे को मेरे को हैप्पी बर्थडे बोला नहीं, हैप्पी बर्थडे। यूजलेस फेलोस। ये बचपना कब जाएगा? कौन से आयु में जाएगा? पूछते हैं तो कहते हैं हम तो 2 साल, 3 साल, 5 साल तक बच्चे का बनाते हैं, और 70 साल के बुढ़े लोग अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हैं और एक दूसरे के अंदर वो केक ठूसते हैं। अरे कौन सा हमने जीवन में बड़ा काम किया है कि हमारा जन्मदिन मनाए? नहीं, हम दिया बुझाते नहीं, जलाते। कौन, क्यों मनाए तुम्हारा जन्मदिन? तुम्हारे मरने के बाद अन्य लोगों को मनाने दो तुम्हारा जन्मदिन। कोई किसी मरने वाले व्यक्ति को, मरे हुए व्यक्ति का जन्मदिन हम याद करते हैं क्या? जीवन में कोई विशेष करना चाहिए, विशेष बनना चाहिए। वो छोड़कर ऐसे बचपना में अपनी बुद्धि इतने छोटे छोटे विषय में, अल्प विषय में, आज जन्मदिन से रुका नहीं, कोई एनिवर्सरी डे, फिर कोई पहले बार संडास में गया उसका एनिवर्सरी, पहले बार कपड़ा पहना उसका एनिवर्सरी, ऐसे पागलों जैसे भटक रहे पूरा भीड़। मैं तो अपने ये सब सोशल मीडिया में मेरा जन्मदिन को वो कंपलसरी है, पर हाइड करके रखा हूं, नहीं तो पागल जैसे बस हैप्पी बर्थडे हजारों में आता है तुरंत। और कोई मर गया तो लिखते हैं रिप। अरे पागल, रिप यानी क्या अर्थ है जानते हो? रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस। अरे हमारे आत्मा की कल्पना में कोई रेस्ट नहीं। वो जो तेजी से भागता है आत्मा, अंधेरा को चीरते हुए प्रकाश की ओर, अन्य लोगों की ओर, बाद में फिर पुनर्जन्म के लिए अपने शरीर को ढूंढता है। वो क्रिश्चियनों का विश्वास है कि वो उसको गाड़ के रखा और यीशु आएगा किसी फाइनल जजमेंट के दिन, और तब तक वो मिट्टी में पड़ा रहेगा, और जजमेंट के दिन आके वो सभी शवों को, मुर्दा को उठाएगा और सबको स्वर्ग में ले जाएगा। पागल, 10 दिन में तो सड़ने वाला है मुर्दा, कीड़े खाने वाले हैं उसे। हजारों वर्ष बाद यीशु कब आने वाला है? डे ऑफ जजमेंट, फाइनल जजमेंट। सभी मुर्दों को आके वो चेक करेगा, और जिसके गले में क्रॉस है उनको सब इटर्नल हेवन। और हम लोग जो माथे पर तिलक लगाते हैं, राम कृष्ण और शिव जी को पूजा करते हैं, यीशु को नहीं, तो हम लोगों को इटर्नल नरक में डालने वाला है यीशु। तब तक उसके लिए शरीर को जपा के रखना है। ऐसे हमारे हिंदू कोई सोचता नहीं कि ये क्या अर्थ है रिप। अरे पागल, एमटेक किया है, एमएससी किया है, इतना नहीं जानते रिप का अर्थ क्या होता? इतने भेड़ जैसे अपने
बुद्धि को हमने गिरवी जैसा रख लिया है, क्योंकि वी आर टू मच एक्साइटेड। छोटे छोटे विषय में एक्साइट हो जाते हैं, और उसका एक्सट्रीम छोटे छोटे विषय में डिप्रेशन हो जाते हैं, मूड आउट, मूड ऑफ। मेरा नए साड़ी को किसी ने पहचाना नहीं, किसी ने पार्टी में आके मुझसे पूछा नहीं कि ये कौन सी साड़ी, कितना पैसा, कितना रुपया, कहाँ से लिया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। कितनी बचपना है। वी शुड कम आउट ऑफ इट। अल्प विषयों को बोलते हुए, अल्प विषयों वस्तुओं में डूबते हुए, अल्प सुखों में अपना जीवन टाइम बिताते हुए। कई बड़े लोग मिलते हैं, एक साथ बैठते हैं, कई कोई सीरियस बातें। मैं भी कई प्रयत्न करता हूँ, स्कूलों में जाता हूँ, स्टाफ रूम में बैठता हूँ। ऐसा मैं कम से कम 40-42 स्कूलों में गया, स्टाफ रूम में जाके बैठा, सरकारी स्कूल, बस शांत बैठा रहता। ये टीचर लोग जो एमएससी, एमएड, एमकॉम, एमएड, एमए, एमएड, एमफिल, ये लोग क्या चर्चा करते हैं, ये सुनने के लिए आधा घंटा 1 घंटा बैठा हुआ। कहीं कोई एजुकेशन के कोई सीरियस पॉलिसी के बारे में, क्लासरूम में कोई सीरियस प्रॉब्लम विद अ स्टूडेंट, लर्निंग प्रॉब्लम, मेमोराइजिंग प्रॉब्लम, ऐसा कोई सीरियस विषय की चर्चा हो रही है क्या भाई? आप कैसे करते हो? 11th डी को कैसा हैंडल करते हो? बड़ा बड़ा मेरे को कठिन जाता है। ऐसा कोई सीरियस डिस्कशन मैं एक भी स्कूल में पाया नहीं, एक भी स्कूल में। फालतू बातों में, फालतू विषयों में ऐसे घंटे 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 बोल रहे। How, when are we going to come out of all this? At what age? ठीक है, मैंने हमारे घर की बहू को एक बार ऐसा कुछ सीरियस विषय समझाया, उसने बोला कि नहीं नहीं, आई वांट टू एंजॉय। मैं तो अभी 28 साल की हूँ, एंजॉय। अब 50-55 साल की हो गई, फिर भी एंजॉय, छोड़ नहीं रहे एंजॉय। क्या एंजॉय? अनुभव से समझना नहीं है जीवन को। हमारे दादाजी, हमारे एक चाचा थे, पिताजी के नेक्स्ट नंबर 2 के भाई, बिलासपुर जबलपुर में रहते थे। तब तो मोबाइल फोन नहीं था, 1981, 81 इफ आई एम राइट। सामने वाले घर में फोन आया। 40 वर्षों से, कॉलेज के समय से ये चाचा हर समय बीमार रहते थे, अस्थमा की समस्या, ऐसा रात के समय श्वास खींचते थे। आज की कल ऐसी अवस्था थी, बड़े जल्दी जल्दी से उनकी लड़की का शादी कराया कि वो मर न जाए, उसके पहले शादी कराया। ऐसी अवस्था में 1981 में सामने वाले घर में, गीद के घर में फोन आया। रात का शाम का समय था, मैं अपने संध्या वंदन में बैठा हुआ था। दादाजी और दादी जी बाहर में, वरांडा बने घर के बाहर आंगन में बैठे हुए थे, और पिताजी गए फोन अटेंड करने, और फोन का मैसेज था कि सुंदर, जो हमारे चाचा हैं, वो मर गए। वापस आए, अपने पिताजी से बताया विषय कि सुंदर मर गया, चल गया। ओ, आपने तमिल में नायकन, मेरे को हिंदी में क्या पिक्चर था मालूम नहीं, कमला हसन का पिक्चर, उसमें वो रोता है एक सीन में, ऐसा भयानक रोता है। मेरे दादाजी ऐसे रोए। मैं संध्या कर रहा था, मैं थोड़ा पीछे हटके दरवाजे से देखा, क्या हो गया, तो रोए थोड़े समय के लिए। मैं ये सोच रहा था, सोचा, छोटा मैं तो
मैं कब उस समय मैं 21-22 साल का, तो मेरे मन में आया कि इन्होंने कितने मृत्यु देखा है। ये जो बच्चा है, ठीक है, उनका पुत्र है, पर ये बच्चे को कितने बार मरते मरते देखा है। ये कोई अनपेक्षित न्यूज़ है क्या कि अरे रे वी डिडंट एक्सपेक्ट। वो तो अच्छा था, ठीक है, अच्छा भी रहा। मरण मृत्यु ये कोई अनएक्सपेक्टेड है क्या? आउट ऑफ 50 इयर्स ऑफ लाइफ, 70 साल की आयु में, 70 नहीं, मेरे दादाजी को उस समय 81 साल के थे, 81 की आयु में, if one could not have learned from all the experiences in life, then what is the purpose of all experiences if we cannot learn from experience? एक बार करेला खाते हैं तो जीवन भर करेला को डिसमिस करते हैं। अरे उसमें क्या है, देख के खा के तो देखेंगे। ठीक है, छोटे बचपन में मैं भी पसंद में थी, अभी तो बड़ा हो गया, क्या है देखेंगे, सब्जी तो है, मार तो नहीं डालेगा। ऐसे फालतू विषय में इतनी दृढ़ता कि हम नहीं दिखाएंगे, मेरे को नहीं जमता। बट जो आवश्यक विषय है, लर्निंग विषय है, लाइफ के बारे में जो अर्थ बताता है, ऐसे विषय में हम दिमाग को बंद कर देते हैं। बिकॉज वी आर टू मच एक्साइटेड, we get excited, euphoria state, और we get depressed, एकदम झमक इस नीचे की ओर चले जाते हैं। मेरे लिए प्रिय भक्त है जो ऐसे होता नहीं। कैसे कहते हैं? हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्त है, जो इनसे मुक्त है, one who is without these emotions, वो मेरे लिए प्रिय भक्त है। आप पूछ सकते हैं, हमारा बच्चा मरता है तो हम कैसे रोएंगे नहीं क्या? मैं एक साधु की कथा सुनाता हूँ। सिंध प्रदेश के साधु, दयाराम कोई उनका नाम था। राम के बारे में, रामायण, गीता, ये सब बातों को प्रवचन करते थे, भीड़ों में, जनता के बीच में जाकर प्रवचन। वो उनके लिए व्यवसाय था, पैसा मिलता था। 7 दिन के लिए कहीं बाहर गए, कार्यक्रम समाप्त करा, घर में वापस आए, पैसा पत्नी के पास दिया और उनका परिवार चलता था। 3 बच्चे थे, लड़के, 3 लड़के, 12, 8 और 5, ऐसे 3 बच्चे। एक बार ये 7 दिन के लिए सप्ताह, भागवत सप्ताह के लिए गए थे, वापस आए, शाम का समय था, हाथ पैर धोए, स्नान किए, संध्या किया। आते ही पूछे बच्चे कहाँ हैं? पत्नी ने कुछ बोला नहीं, स्नान के लिए चले गए। संध्या अंध्या होकर शाम को भोजन के लिए बैठे, फिर से पूछा साथ में बैठने के लिए, बच्चे कहाँ हैं? जल्दी सो गए हैं क्या? पत्नी ने झूठ तो बोलना नहीं, कुछ बोला नहीं। बाद में पत्नी ने बात बदल डाला। बाजू वाले घर में आज आई थी पड़ोसन, तो ये पूछे कि भाई क्या हुआ, क्या बोली? हमने पिछले 10 दिन पहले उनसे बर्तन सब लिया था उपयोग करने के लिए, एक विशेष कार्यक्रम के लिए कुछ बर्तन लिए थे, वो उन्होंने वापस आई और वो बर्तन वापस मांगने के लिए आई आज। तो ये पतिदेव बोले, हाँ दे दिया ना, बर्तन तो उनका है, मांगने के पहले देना था। ठीक है, मांग के आई,
तो दे दिया ना तुमने? तो पत्नी ने कहा हाँ हाँ दे दिया, उनका ही तो बर्तन है। ऐसे उसने कहा। भोजन हो गया, रात का पान बीड़ा सब होकर वापस आए, निद्रा के लिए जाना है। अरे बच्चे कहाँ हैं? तो ये बच्चे, पत्नी ने तीनों बच्चों के शव को जो खाट के नीचे रखा था बाहर निकाला। तीनों लड़के मर गए थे हैजा, इस बीमारी से, हैजा या माता से मर गए थे उस दिन। 3-4 दिन से बीमारी थी और मर गए। उसने तीनों मुर्दों को खाट के नीचे रखा था। फिर पतिदेव आएंगे, आते ही ये विषय न समझे उनको। तो ये जो कथा कालक्षेप प्रवचन करते थे, बड़े बड़े शब्द, भागवत, भगवत गीता, रामायण, तात्विक उपदेश, फुट फुट के रोए, माथा फटक फटक के रोए, हाथ पैर चलाकर रोए, फिट्स हो जैसा, मूर्छित हो गए, वापस आए, होश में आए। तो पत्नी ने उनको समझाया, हो आपने तो कहा उनका बर्तन है, उन्होंने मांगा तो दे देना चाहिए, अरे ये जीव तो उसने दिया। तीनों बच्चे हमारे घर में पले, हमारे द्वारा जन्मे गए, हमारे साथ 12 वर्ष रहे, पर ये तो उसने दिया, और उसने दिए हुए जीवों को उसने वापस लिया। इसमें इतना क्या रो रहे आप? एकदम उसके अंदर चमक आया, पत्नी को नमस्कार किया और बस सन्यासी बनकर घर से चला गया। समर्थ राम, जैसे तुलसीदास की जो कथा है, दूसरे संदर्भ में है तुलसीदास, हम बाद में कभी बताएंगे। इसी प्रकार पत्नी ने उनको जीवन दिशा दिया। हमारे बच्चे हैं, खलील जिब्रान कहते हैं, माँ बाप और बच्चों के बीच में कैसा संबंध है? धनुष्य और बाण जैसा संबंध है। धनुष्य ने ऐसा नहीं सोचना कि बाण मेरा है, मेरे ही पास रहेगा। बाण को अपने दिशा में जाना है, अपना जीवन व्यतीत करना है, उसको अपने मार्ग पर चलने के लिए उसको तैयार कराना, इतना मात्र धनुष्य का काम है। धनुष्य का धागा यदि ढीला है तो बाण अपने इरोत्तिमूणां पुलिकेशी जैसा पास में आके गिरेगा, अपना लक्ष्य तक पहुंचेगा नहीं, ढीला ढाला जीवन रहेगा उसका। और धनुष्य ने ये समझना चाहिए कि मैं बाण को मैं नहीं चला रहा, मुझे और बाण को, दोनों को तीसरा कोई व्यक्ति चला रहा है। उसके हाथ में मैं कठपुतली हूं। I am not directing my child's life. ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मैंने तुम्हारे लिए इतना त्याग किया, तुम अपना स्वार्थ देखकर चले गए। मेरा बच्चा, मेरा इतना भी अधिकार नहीं क्या तुम्हारे ऊपर? हमारे यहाँ ऐसी कुछ लड़कियां हैं, 28 साल की हो गई, 30 साल की हो गई, 32 साल की हो गई, वो कमा के लाती है, माँ बाप को उसकी लत लग गई लड़की के कमाई का। अब उनको इच्छा नहीं हो रही कि इसको शादी करके भेज दे। हमारे बिल्कुल पास में एक लड़की है, मैं उसके माँ बाप से बोला, मैंने 3 साल पहले बोला था उसकी शादी करा दो, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बोला आप एक बार उसके पैसे का खाने लगोगे, आपको उसके बाद वो 36-40 साल तक शादी नहीं होगी, बाद में दुखी होगी जीवन में। मेरा 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 मेरी मेरी लड़की, I'll direct her life, I'll dictate her life.
his life. इसीलिए इस प्रकार के एक्सट्रीम से हमको निकलना है. Slowly, out of experiences in our life, we should come out of all this pettiness, smallness, अल्प, और हमारे अंदर स्लोली 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 प्रकाश, लाइट जलना चाहिए, जो अपने लिए आनंद देगा. आनंद देने, ये जो एक्साइटमेंट नहीं है, आनंद एकदम शांत आनंद है, और अन्यों को भी, कुछ लोगों को आनंद दे सकता है जो अपने आसपास हैं. बट दैट इज नॉट अवर इंटेंशन. हमारे अंदर आनंद आना चाहिए. ऐसा एक छोटा लाइट अपने अंदर प्रकाश. ये मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हैं, इससे सब कोई लाभ नहीं होने वाला है. इट इज ऑल जस्ट ए प्रैक्टिस. थोड़ा सा रिचुअल है, इसमें कोई अर्थ नहीं. इफ दैट लाइट इज नॉट लाइटेंड अप विद इन, हमारे अंदर अपना प्रयत्न होना, थोड़ा सा अंदर शांत होना चाहिए. वी शुड स्लोली हमको अलग करना चाहिए अपने आसपास के लोगों से. इसका अर्थ हमारे मन में प्यार नहीं, ऐसा नहीं है. प्यार है, प्रेम है, तो हमारे उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं. हम अपने ओर से जो जो भला सबको कर सकते हैं वो करेंगे, वो प्रेम है. ओनली अवर रोल विल डू. बट हम जब बंधे जाते हैं, मेरा है ऐसा, तो हम उससे एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि हमसे वो कैसा व्यवहार करे, हमको कैसा सेवा करे, हमको कैसी सहायता करे, ऐसे उससे एक्सपेक्ट करते हैं. इसीलिए हमारे मन में गुस्सा आता है. वो कोई कभी हमारे एक्सपेक्टेशन से अलग कोई बर्ताव किया तो बड़ा गुस्सा, वाद विवाद हो जाता है. We should slowly divorce ourselves from the family, from our surroundings, but fill up our minds with love. Love, only love. जैसे एक गुलाब है, वो गुलाब, उसके अंदर सुगंध है, तो मैं वहां से जा रहा, मैं अपने दुख में हूँ. स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, कल का क्या होगा, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसी चिंता में हूँ. वो गुलाब से आकर हवा मेरे नासी को स्पर्श कर रहा, गुलाब का सुगंध मेरे अंदर जाता है. बट मैं इतना मूर्ख अपने ही का चिंता में लगा हूँ कि मुझे गुलाब का सौंदर्य या गुलाब का सुगंध रजिस्टर हो नहीं रहा. तुरंत वो गुलाब मुरझा जाकर, अरे मेरे को किसी ने परवाह नहीं किया, मेरे तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, कितना सुंदर सुगंध मैंने दिया, जड़ जैसा हो गया आदमी. मेरे को मेरे सुगंध के लिए एक बार श्वास लेकर मेरे ओर मुड़ के देखकर वाह वाह वाह, ऐसा मेरे को अप्रिशिएट नहीं किया. तो ये जो स्टार चैनल में, विजय चैनल में, स्टार चैनल में 40-24 साल का बच्चा गाने के स्पर्धे से तुम निकल गए, ऐसा उसका मार्क दिखाते हैं और बोलते हैं 9 मार्क, यू आर आउट ऑफ कंपटीशन. और फिर माँ को लटका के और रोना. पागल है क्या? 24 साल का कोई युवक ऐसा रोता है क्या जीवन में? एक बार हार गया तो क्या हुआ? इस प्रकार फालतू विषय में, और वो हम घंटे घंटे देखते बैठे हैं. हम भी, हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो उसके साथ हम भी रोते हैं. कितनी बचपना है. We should fill up our life. If you don't appreciate, okay, I am what I am. मैं जंगल में यदि मैं गुलाब का फूल फूलता हूँ, जंगल में भी मेरे अंदर उतना ही सुगंध भरा हुआ है जितना एक घर में
आसपास भीड़ है, ऐसे जनता के बीच में मैं फूलती हूँ, वहां जितना सुगंध भरा है, एक भी व्यक्ति मेरे को प्रशंसा करने वाला है नहीं। ऐसे जंगल में भी मैं उतने ही सुगंध से भरे हुए हूँ। दैट इज लव। एक आम, मैं नीलगिरी पर्वत पे जाता हूँ, कई बार जाते जाते मैं रुकता हूँ, वो झरना जैसा आता है, उसमें बहते बहते आम आता है, फला हुआ आम, थोड़ा सा तोता खाया या खार ने खाया हुआ ऐसा आम, एकदम मीठा, एकदम मीठा। ओ, कहां से आ रहा? शिखर, दी पीक ऑफ द माउंटेन, कोई मनुष्य उससे खाने वाला है, खाकर ये बोलने वाला है, वाह वाह वाह, क्या स्वाद है, क्या मिठास है, कि उसको सुनकर वो बड़ा आनंदित हो गया। जंगल में अकेले में उतनी ही मिठास भरा हुआ है। हमारे भोजन को अप्रिशिएट नहीं किया तो मूड आउट हो गई। मैंने इतने कष्ट से बनाया और पति जड़ जैसा उसको खाया और चला गया, एक शब्द बोला नहीं। वाह, अच्छा था। देखो, इन सब बातों से हमको एक आयु के बाद, ठीक है, 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, 40 साल में, ठीक है, स्लोली वी शुड कम आउट ऑफ ऑल दिस। गीता पढ़ने का यही अर्थ है। और ऐसे व्यक्ति मेरे लिए प्रिय है, ऐसे श्री कृष्ण कह रहे हैं। वर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः सच मे प्रिय, अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ, सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः, समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः, तुल्य निंदात्म संस्थिति, तुल्य निंदात्म संस्थिति, तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेत स्थिरमतिर्, अनिकेत यानी हाउसलेस, होमलेस, यानी छत मेरे ऊपर है नहीं, मैं रास्ते के फुटपाथ में रहता हूँ, ऐसा नहीं अर्थ है। I am not attached myself to one particular house. My heart is for the whole world. The whole world is my house. I may live in a confined small house. That is different. I have not been to Switzerland. I have not been to America. I have not been to Uttar Pradesh. परंतु मेरा हृदय सर्वस्पर्शी है, पूरा विश्व भर भरा हुआ है। अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान भक्तास्ते तीव में प्रिया। He is very, 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 very beloved, very beloved, extreme beloved. I love him. ऐसे भक्त, ऐसा कह रहे। आप स्वयं बाकी सब श्लोक पढ़ना, सब लगभग इसी प्रकार की बातें हैं। बाकी 5-6 श्लोक आप ही पढ़ना, अपन अगले बार 15वें अध्याय में मिलेंगे, ठीक है। लेट अस क्लोज। 1 घंटा हो गया, 1 घंटा होने वाला है। आज थोड़ा लेट शुरू किए। कोई क्वेश्चन, समथिंग, कोई प्रश्न? सुजाता हिंदी पुरियुमा? இல்ல அவர் லெஃப்ட் ஆயிட்டார். ஓகே, ஆமா. ஆக்சுவலா இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ்ங்கிறது இதுல அந்த அதுல வந்து அந்த அத்வேஷ்டால வராதுன்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து
நம்ம குணத்துல வருமா எப்படி அந்த இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸும் நம்மள குறைக்கிறது தானே? அதுவும் ஒரு அகங்காரம் என்ன தான். சொல்றது? அகம் நான் ரொம்ப பயந்தவன், நான் ரொம்ப அச்சா. ஏழை, நான் எனக்கெல்லாம் அவ்வளவு, அதுவும் அகங்காரம் தான். நிர்மமோ நிரகங்காரம். அரொகன்ஸ், இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் ரெண்டும் ஒண்ணுதான். சுப்பீரியர், இன்ஃபீரியர். அரொகன்ஸ் அந்த சைடு, இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த சைடு. எப்பவுமே எக்ஸ்ட்ரீம் இருந்தா எக்ஸ்ட்ரீம் ஆயிரும். அரொகன்ட் ஆளுக்கு வேற ஒரு அவனோட பவர்ஃபுல் ஒரு ஆள் வந்துட்டா இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துடும். கரெக்ஷன் ஆகணும் லைஃப்ல, அரொகன்ஸை விடணும், அதுதான் கரெக்ட். அது விடுறதில்லை, உடனே எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போயிடும். அவன் அடக்கிறதுக்கு ஒரு ராட்சசம் வரும், உடனே இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து. எனக்கெல்லாம் இப்ப யாரும் கேட்கறது இல்லை, என் பேச்சை யாரும் கேட்கறது இல்லை, என்ன எல்லாரும் ஒதுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு. மாப்பிள்ளை மாட்டு பொண்ணு வந்த அப்புறம் அண்ணா ஹிந்தில பேசுங்க. ओ सॉरी सॉरी मुझे कोई पूछता नहीं, बहू आती है घर में तो अच्छे उसने वो बनाया, सोच लो क्या बोलते हैं उसको, गुलाब चिखली जामुन। चिखली चखली चखली बढ़िया बनाया, एकदम करेक्ट टेस्ट। और उसके पति यानी इनका पुत्र बड़े चाव से उसको खाया और 2 मांग के खाया। माँ एक जमाने में बड़ा नाम था कि बहुत अच्छी चकली बनाती है। तुरंत अपने घर में अपने अंदर कैसे भावना है इसको उस माँ ने फोकस लाइट को अंदर की ओर डालकर देखना चाहिए। उसको आनंद होता है क्या, वाह वाह, आई हैव गॉट ए वेरी गुड डॉटर इन लॉ, perfect suitable match for my child। ऐसा अप्रिसिएशन आता है क्या कि देखो साला ये कैसा उसके पीछे लगा है, देखो मैं चकली कितने साल इसको बना के दिया, कितना खाता था, मेरे साड़ी के पल्लू के पकड़ के मामा एक और मांगता था, आज इसके पीछे गया है। ऐसे यदि विचार आए तो दैट इज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इट विल किल हर, रिलेशनशिप को खत्म करेगा। तो एरोगेंस जितना बुरा है उतना ही बुरा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। दैट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ अहंकार। अहंकार, मैं तो कुछ नहीं, मेरे को कोई पूछता नहीं, मैं तो बहुत गरीब, मैं तो बड़ा डरपोक, तुम तो बड़े आदमी हो यार, तुम्हारे बड़े बड़े मित्र हैं। ये प्रशंसा नहीं कर रहा हो, ही इज नॉट अप्रिशिएटिंग, वो अंदर तो जल रहा पर वार्ते शब्द उसके ऐसे आ रहे, तुम तो बड़े आदमी हो यार, तुम तो सब जानते हो। अरे वाह, तुम तो इसने बहक नहीं जाना, ये तो जेलसी है ऑफ एन इंफीरियर फीलिंग पर्सन टुवर्ड्स वन whom he feels is superior, he or she। Anna, ஒரு விஷயம், I just want to know, we do something for others on our own belief that I am doing good for him or good for her, but later on we find that that fellow is cheating me. I mean, he is taking advantage of my innocence or whatever it is. How we should feel at that particular moment? Whether I should feel cheated or I should முதல்ல நம்ம மெஷின் இல்ல, இப்படி डिजिटल हम लोगों ने यदि बना दिया, डिजिटल रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आई रिएक्ट दैट वे। वी आर नॉट मशीन्स, रोबोट्स। वन, he has cheated, that is next stage। I say you do something which you feel is good for him, you feel
it is good for him. And doing that is wrong, because it is you who decide what he should have. No, sir. He should feel what is in. We should try to, हमने उसको उसके स्वचिंतन को उत्तेजित कराना है. अरे कोई प्रश्न के साथ मेरे पास आता है तो हमने पूछना चाहिए कि क्या करोगे तुम, ऐसे अवसर में क्या करना चाहिए. मैंने तुरंत अपना डिक्शनरी खोल के उसको 10-12 उत्तर देना नहीं चाहिए. मेरे 25 साल के अनुभव में मेरे पास बहुत आंसर है. I can guide the whole world, but I should not guide. What will you do? ऐसे अवसर पर तुम क्या करोगे? We should encourage that. क्योंकि हमारे मरने के बाद, हमारे बिछड़ने के बाद उसको जीना है, तो हमको उसके अंदर ज्योत जगाना, ज्योत को प्रकाशित करना, यही हमारा रिलेशनशिप का डूइंग गुड. वो एक ही डूइंग गुड है. No, okay, it is in a relationship. What about in a commercial term where relationship is even a friendship, even a neighborhood. no, I am not talking is, about that. Huh? I am not talking about that. I am not talking about that. Say I go to some shop, I know, I mean, whatever he asks, I pay it. But later on, I come to know that he has cheated me. He has charged more from me. Huh. That time I feel that yes, I was cheated. I was a fool to get trapped in that. Oh, You just analyze. आप उसको विश्लेषण करना और वो exactly क्या भावना है उसको समझना, और हमारे हाथ में क्या क्या करने लायक है. अंदर ही अंदर जलना 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 जलना, गुस्सा करना, उत्तेजित होना, इससे तो अपना ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है. उस दुकानदार तो सुधरने नहीं वाला. तो हमसे क्या क्या हो सकता है इसको एनालाइज करना, एंड हमने जो बेस्ट पॉसिबल है वो करना है. या तो उसको अवॉइड करना, या तो डायरेक्ट उसके साथ लड़ना, फाइट करना, उसको लीगल बैटल में ले जाना, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना, उसको सुधरने लगाना, कंप्लेंट करना कमिश्नर को. तो यदि अपने मन में उतना धैर्य है तो करें, बट कूल कैलकुलेटेड स्टेप होना चाहिए. केवल इमोशन में आकर कोई चाकू उठाया, मार डाला, और इमोशन में उसको गाली दिया, इमोशन में उसका कांच तोड़ दिया, या फिर उसके पूरे इमोशन के साथ अपने पति के साथ उतने ही गुस्से के साथ बोलो ऐसा कर दिया उसने, ऐसा कर दिया, इसका कोई लाभ है क्या? डज इट हैव एनी मीनिंग? तो थोड़ा अंदर एक दरवाजा लगा के कमरे के अंदर बैठ के थोड़ा ठंडा होकर सोच के एक्चुअली व्हाट इज द सिचुएशन, ऐसा एनालाइज करके, या पोस्टपोन करना, एक दिन बाद उसके बारे में सोचना, अभी उसके बारे में कुछ नहीं सोचना, कल देखेंगे, कल विषय सो बोलेंगे ये विषय, ऐसा बोलकर उससे हट जाना. ऐसा कुछ अपना खुद का ही प्रयत्न लाना पड़ेगा. ये कोई बाहर का कोई सिखा नहीं सकेगा. एवरीथिंग शुड कम फ्रॉम विदिन. हमारा कृष्ण अर्जुन के लिए तो सामने बैठा था, हमारे लिए कृष्ण तो अंदर बैठा हुआ, बैठाना चाहिए. वो हमको मार्गदर्शन कराएगा अंदर से. He will not advise an excited person. He will talk to a silent person, listening person, peaceful person. चलो ठीक. अनु योगेशम सुल्लु. योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं ब्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ओम श्री कृष्ण ओके नमस्कार 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 जय श्री श्री कृष्ण जय श्री जय श्री कृष्ण